Very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. And you know very well, we almost completed the multiple choice question related to term 1. And the questions are related to the admission of a new partner. And you know very well, admission of a new partner is a situation where we can see that the new partner admitted in the firm and the different types of the adjustment were occurred, like calculation of new profit sharing ratio, accounting treatment of goodwill, as well as the accounting treatment of revaluation of assets and liabilities, and the accounting treatment of reserves, whether it is a specific reserve or general reserve, accumulated profit, accumulated losses, as well as we are discussing about the accounting for workman compensation reserve, investment fluctuation reserve, and the topics are unlimited. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज एन हिडन गुडविल. So let's we take the few question from this chapter, and after that we are moving to the next chapter, the second last chapter. It is almost the last chapter of the term 1, that is an issue of share. So let's we discuss about the chapter that is an admission of a new partner. So this is a very basic concept. So let's we discuss about it. A, B, C are partners, and this is a question number 62 and given in your book. Question number 62 says that A, B, C are partners. A, B, C are partners in the ratio of 3:2:1, and the information says that they agree to admit D. D admitted. D is admitted into the firm, and A, B, C agreed to give A, B, C, because D is a new partner, so D को A, B, C तीनों मिलकर गिफ्ट कर रहे हैं, नया शेयर दे रहे हैं, 1/3, 1/6 and 1/9. 1/3, 1/6 and 1/9 for what? Of their profit. अपने प्रॉफिट का 1/3, 1/6 and 1, यानी 1/3 मतलब 3/6, 2/6 and 1/6. Is it very clear? यानी A जो है वो अपने शेयर का 1/3, B अपने शेयर का 2/6 और C अपने शेयर का 1/6 दे रहा है. यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया है द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ D विल बी. सो D's गेट्स, D को कितना मिलेगा. तो आपको ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, बस सीधे इनका शेयर निकाल लीजिए. 3/18, 2/36, 1/54. उन तीनों को ऐड कर दीजिए. A से मिला 318, B से मिला 236, C से मिला 154, 18, 36 एंड 54. ये एलसीएम होगा 54, 9, 54 नहीं होगा, इट विल बी 18, 36 एंड 54 को और इजी कर सकते हैं. 1/6, 1/18. अब आई होप कि अब यहाँ पे एलसीएम जो है 54 हो सकता है, तो इजी हो गया कॉन्सेप्ट. 6 9 ज़ा 54, तो 9 प्लस 18 3 ज़ा 54, 3 54 1 ज़ा 54, so 9 3 12 and 13/54. So the right answer option number D is the 13/54. D gets. इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आपको ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं. कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं हम, विच आर ऑल्सो रिलेटेड टू द the question is XY are partners in the ratio of 5:3. This is a question number 56. The question says that X and Y are partners. X और Y partners हैं और उनका रेशियो है 5:3, and they admitted Z. वो Z को कहते हैं चलो आओ बिजनेस ज्वाइन करो. They admitted Z for 1/5 profit, for which he paid 60,000 as capital and 30,000 as goodwill. Capital कितना 60,000 and goodwill is a 30,000.
So for which Z introduced capital of rupees 60,000 and goodwill for 30,000. Find the capital balance of each partner by taking Z capital as a base. आपको Z के कैपिटल के बेसिस पे बाकी X और Y और Z तीनों के पार्टनर की न्यू कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके लिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताया था कि Z brings capital for 1/5 share. So Z ला रहा है कैपिटल 1/5 शेयर के लिए कितना 60,000। गॉट इट? यहां तक बात समझ में आ गई कि Z कितना कैपिटल ला रहा है 1/5 के लिए 60,000। सो व्हाट विल बी द टोटल कैपिटल? What will be the total capital? The total capital will be 60,000 multiplied by 5 is 3 lakh. Very simple. अब हम इसको यहाँ सॉल्व करें तो you can see that x, y and z बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। z की कैपिटल तो 60,000 है, z की कैपिटल कितनी 60,000 और टोटल कैपिटल में भी 3 लाख। तो बाकी दोनों के लिए कितना बचा? बाकी दोनों के लिए बचा 3 लाख माइनस 60,000 दैट इज 2,40,000। इट मीन x और y को कितनी कैपिटल और मेंटेन रखनी होगी 240 बिकॉज z की तो 60 है। अब 240 को x और y किस रेशियो में बांटेंगे? अपने पुराने रेशियो 5:8 एंड 3:8। सो आप जब इसको बांटेंगे 5:3:8 में तो ये क्या हो जाएगा 150:90। So the new capital among X, Y, Z is 1,50,000, 90,000 and 60,000. So option number C is correct. इतना नया रेशियो निकालो फिर कैलकुलेट करो, इतना लंबा रास्ता तय करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो शॉर्टकट से भी कॉन्सेप्ट को मजबूत करके कॉन्सेप्ट को परफेक्ट बना के यू कैन ईजिली सॉल्व एनी क्वेश्चन। सो इस पे भी आपको फोकस रखना है अपनी चीज़ों पे। नो डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 56 एंड देयर आफ्टर वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is a very famous question. That is a question which are related to the hidden goodwill. इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आके आपको कंफ्यूज करेंगे, तो इन कंफ्यूजन से बचने के लिए इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द हिडन गुडविल। सो द कॉन्सेप्ट इज हिडन गुडविल। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज हिडन गुडविल? पता है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि द गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन and also the total goodwill of the firm is also not given. So how we will find out the amount of goodwill brought by the new partner? It is impossible to calculate. So situation में हम hidden goodwill के steps को follow करते हैं। The question number 66 is related to the hidden goodwill. Question number 66 says that XY partner है, उनकी capital है 180 and 2 lakh. X and Y है, उनकी capital है 1 lakh and for Y is 2 lakh. So this is the capital for X and Y. And C, Z was admitted for 1 share profit. Z gets 1/4. Z नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के 1/3 के लिए और 3,40,000 है। ठीक है, जेट 1/3 के लिए 3,40,000 आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हम करते क्या है, हमें स्टेप्स फॉलो करना होगा। स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट टोटल कैपिटल, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर के बेसिस से टोटल कैपिटल क्या होगी। सो अगर आप देखें जेड ला रहा है 1/3 340, सो 1/3 के कैपिटल कितना ला रहा है
इट विल बी 3,40,000. सो न्यू पार्टनर के बेसिस पे टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, 340 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 10,20,000. So according to the new partner, the total capital will be 10,20,000, and step 2 will be total capital of all partners, that is an A plus B plus C. So to A capital, sorry, here is the X, Y, Z, not A, B, C. X, Y and Z. So X की capital 180, Y की capital 2 lakh, and for Z capital is 3,40,000. So the total capital will be 3 to 5 and 6, 7,20,000 is the amount. This is the total capital as per the step 1, and it is the total capital of the current capital X, Y, Z तीनों का जोड़ है. So step 3 is the goodwill of the firm, that is a goodwill of firm. So what will be the goodwill of the firm? जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज 10,20,000 माइनस 7,20,000 डिडक्ट कर दीजिए, इट विल बी 3 lakh. सो गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 lakh, एंड यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, यस गुडविल ऑफ द फर्म, बट अगर एग्जाम क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द शेयर ऑफ जेड गुडविल, जेड की गुडविल कितनी है 3 lakh मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इज 1 lakh. So this is your answer and this is your answer as per the demand of the question. आप मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप किया, आप एग्जाम में जरूरी है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना हो. आप विदाउट टेकिंग एनी स्टेप आप इन सारे क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. द नेक्स्ट चैप्टर now let's we move to the next chapter, and it is a very important chapter for the accounting point of view and for the term 1 examination. It is a very important chapter for us, so let's we discuss about it. The you know very well, retirement, death of a partner, and the questions related to the dissolution of the partnership firm were included in the term 2 examination, and the CBSE issued paper for this chapter on the subjective model. So you know very well, in the term 1 examination there are specified subjects, specified topics and chapters are included in the term 1, that is in the part A, into partnership firm in fundamental, that's an introduction of partnership firm, change in profit sharing ratio, admission of a new partner, and in the volume 2 of part A it covers the very famous chapter that is an accounting for share capital issue and forfeiture. And if you are talking about the rest of the topics, so it will be related from the part B, that is in financial statement analysis and accounting. Financial statement analysis only the part of the theoretical. Common size and comparative statement are related to the part for part term 2, term 2nd, okay. And if you are talking about the accounting ratio, it is also included in the term 1. Rest of the chapter are related to the term 2 examination as a subjective paper. So let's we move to second final topic from the term 1 is accounting for share capital. Accounting for share capital. और इस चैप्टर में बेसिकली यू नो वेरी वेल आपको क्या क्या पढ़ना है. थ्योरेटिकली की बात कर लें चाहे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की बात कर लें, इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने, क्योंकि इट इज़ अ वेरी आइडियल चैप्टर for all of for the accountancy term 1 examination,
एंड बिकॉज इस चैप्टर से कई सारे थ्योरेटिकल और कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। सैम्पल पेपर भी आप उठा के देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा इसमें से पूछे गए। सो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, मल्टीपल टॉपिक्स हैं। अगर हम टॉपिक्स की बात करें इस चैप्टर्स में, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो इसी चैप्टर्स में आपको मिलेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इशू ऑफ शेयर। शेयर इशू होता है, और इशू ऑफ शेयर के कई कॉन्सेप्ट हैं, फॉर कैश, अदर देन कैश, as well as issue of share at par or at premium. So there are lots of the concept are there, as well as issue of share के साथ calls in arrear and calls in advance. It is a very practical concept. Okay, as well as if we are talking about the next topic of this chapter is a over subscription and under subscription. ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, एंड उसमें हम लोग करते क्या है, यू नो वेरी वेल, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन यू नो वेरी वेल, हम उसमें प्रोराटा अलॉटमेंट, निल अलॉटमेंट, जीरो अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं। ठीक है, और ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन के साथ साथ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। ओके, एंड उसी के बाद जस्ट है री इशू ऑफ, ये अलग से टॉपिक है, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। ये सब मैं न्यूमेरिकल टॉपिक की बात कर रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ, जिसपे एक दो क्वेश्चन पक्का आने वाला है टर्म 1 में, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी की बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, और इशू ऑफ शेयर में यूनिवर्सल डिफरेंट टॉपिक्स आर देयर, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, एंड द पर्पस के बेसिस पे भी आपको पता है देयर आर 2 पर्पस फॉर द इशू ऑफ शेयर, फॉर कैश, फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन। सो ये तो इतने सारे थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल टॉपिक्स हो गए, इन टॉपिक्स को तो डिस्कस करना ही करना है। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं द प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और वो आपको क्या होना चाहिए, अपने कॉपीज़ में नोट कर लीजिए रिलेटेड टू द कंपनी। Please note down all the topics, and it is a very important class, very important video for all of you. So please make a proper notes. Important notes related to company. और जो मैं ये नोट लिखवाने जा रहा हूँ, ये पूरे मिक्सचर हैं, ऐसा नहीं किसी स्पेसिफिक टॉपिक से ही रिलेटेड है, ये पूरा मिक्सचर है। ओके, पूरा मिक्सचर है ये आपका, जितने भी आपने टॉपिक्स कंपनीज के पढ़े हैं उन सब का एक मिक्सचर मैंने बनाया है, और उससे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स निकल के आए, कुछ पॉइंट्स निकल के आए। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पॉइंट नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर cannot be redeemed, cannot be issued for more than 20 years or 30 years, for more than 20 years. प्रेफरेंस शेयर 20 साल से ज़्यादा के समय के लिए इशू नहीं हो सकते। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, नहीं इशू हो सकते। प्रेफरेंस शेयर 20 साल से ज़्यादा के नहीं हो सकते हैं in case of infrastructure company, infrastructure कंपनी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होगी, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, कंपनी द मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड इज 30 years। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के सिचुएशन में ये 30 साल की डिसाइड किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू द प्रेफरेंस शेयर इज
कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के बारे में। व्हाट इज कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर? एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिस पे ये स्पेसिफिक राइट होता है कि अगर कंपनी ने इस साल आपको डिविडेंड नहीं दिया तो वो डिविडेंड एक्यूमुलेट करके नेक्स्ट ईयर दिया जाएगा। सो सपोज अगर इस साल कंपनी पूरा डिविडेंड नहीं दे पाती, सपोज कंपनी ने इस साल आपको कंप्लीट डिविडेंड नहीं दिया, सो इस सिचुएशन में क्या करेगी कंपनी, नेक्स्ट ईयर आपको क्या करेगी, डिविडेंड देगी, और जब भी उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। सो याद रखिएगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के रिलेटेड में अगर कोई अनपेड डिविडेंड है, सो अनपेड डिविडेंड या वो डिविडेंड जो भी नहीं दिया जा सका है ड्यू टू द इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, सो अनपेड डिविडेंड रिलेटेड टू द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। इट इज एन कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के अनपेड डिविडेंड की बात हो रही है, इट इज नॉट अ करंट लायबिलिटी, इट इज एन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में कंपनी के पास कब सफिशिएंट प्रॉफिट होता है। ये कुछ ऐसे नोट्स हैं जो कभी आपको एक जगह नहीं मिलेंगे, ऐसे मैं ऐसे ही नोट्स आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। और जो बाकी चीज़ें हैं वो तो बुक में गिवन ही है कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ company, what are the feature of the company, what are the maximum and minimum number of the member in the public company or private company। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी आपके बुक में गिवन है। 1% कंपनी की कैपिटल की, इट इज ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड, बट मैं जो यहाँ चीज़ें लिखवा रहा हूँ इट इज टोटली रिलेटेड टू द मिक्सअप सिचुएशंस, जो क्वेश्चन बुक में आप जब आप डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब ये सब पॉइंट्स आएंगे, और अब 1-2 दिन यही पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। सबसे नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, यानी जब आप शेयर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट कराते हैं, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर कंपनी have no need to issue prospectus। यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट, शेयर्स के प्राइवेट प्लेसमेंट के सिचुएशंस में कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है तो क्या कहते हैं उसको, स्टेटमेंट in lieu of prospectus, यानी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर के सिचुएशन में कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, आपको पता होगा नया कंपनीज एक्ट 2013 में आया। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 नो कंपनी इशू, कोई कंपनी इशू नहीं कर सकती, नो कंपनी इशू इट शेयर एट डिस्काउंट। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती, यानी लेस देन द फेस वैल्यू पे शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर, एक्सेप्ट सेट इक्विटी शेयर। याद रखिएगा ये सैंपल में आया भी है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर ही एकमात्र ऐसा शेयर है, स्वेट इक्विटी शेयर ही एकमात्र ऐसा शेयर है जिसे कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, बाकी किसी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, और ये कहता है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 53। ओके, ये याद रखिएगा। और ये जो डिस्काउंट, ये जो शेयर होता है वो किसको इशू किया जाता है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को इशू करती है, अपने डायरेक्टर्स को इशू करती है। और किस लिए इशू करती है, फॉर IPR,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो प्लीज नोट डाउन ऑल द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इन पॉइंट्स को आपको अपने दिमाग में रखना होगा और इसी के बेसिस पे प्रिपरेशन करनी होगी।